It's a computer engineering branch, first year. Okay. So thank you, Payal madam, and good morning to all my young computer engineers. We will make this session slightly interactive, so you'll also understand that what you have in your mind. Everybody has joined a computer engineering with certain dream in their mind, that they will think that once I become computer engineer, then I'll be able to do this, I'll be able to do that. So I would like to know that what dream or what idea you have with which you have chosen computer engineering as a discipline. Maybe a few of them. Why computer engineering and why not any other branch? See, it is basically you have chosen. It is not that something which has come to you automatically. See, you have filled up the choice, and based on your choice, you have taken the admission in computer engineering. So why you have chosen this? What dream you have, or what you are expecting at the end of 4 years? You can unmute and talk it out rather than putting into a chat. To become a software developer, interest in software developing. Okay, what is required to develop a software? I'm just trying to tell you things in a very simple language. I believe everybody knows Microsoft Word. Yes, no? Hello? Everybody knows Microsoft Word. Suppose I'm great at Microsoft Word. I know everything, even advanced command I know. But what happens if I don't know English? I don't know what to write in a letter. Knowing Microsoft Word, somebody asked me that you draft this rent agreement for my office. Do you think that I can draft? Yes, no. Knowing Microsoft Word, I can type. If somebody has written on a piece of paper, I can type it out into Microsoft Word. But nothing is written on the piece of paper, and I am required to write a letter. Do you think that I'll be able to do it without the knowledge of English? No, sir. No. So to develop a software, what is required? To know the computer language. You require a knowledge of domain. See, this is basically a problem with computer engineering. See, there are guys who get a job with a very heavy salary. And there are guys who do not get a job even of 5,000 rupees. Hello? Hello? Anybody want to ask anything? Hello? Deepak bhai, they will write and send something in chat messages. Okay, I'll keep the chat on. I'll keep the chat Yes, and students, you just mute yourself, but if you want to speak, you can unmute yourself. So not an issue in unmuting yourself. But keeping unmute will disturb the entire not class. all the Background yes. noise will Yes, create a yes, trouble. yes. Yes. So Yes, don't exactly. keep yourself unmute continuously. You can always unmute. There is no restriction for that. But you unmute, talk it out, and mute yourself again. So what is required? Basically, the guy who are successful and the people who do not get a job even of 5,000 rupees, the difference is basically their ability to understand the subject.
So I'm really congratulate the LDRP college to organize this kind of program, because this will be an eye opener for you before you start your journey. See, somebody tells me on my journey, if I carry the water, carry the food, carry the topi, it becomes easy for me. I can carry. But on my journey, when I'm trying to reach at the destination, there I realize, yaar pani bhi chahiye or topi bhi chahiye, I'll have a problem because I don't have a time. I have wasted my 4 years in learning something else, and I have missed something which is not taught as a part of the curriculum. And I'll tell you the reason why it is not possible to teach also. Suppose a baby is born and his parents or his or her parents decide that he or she should become a doctor. So what I'll do, from the very first standard, I'll get he or she into the medical college. उसको मैं medical college में admission दिला देता हूँ first standard से. तो खिलौना खेलने के लिए बोलते हैं तो स्टेथोस्कोप देने का, इंजेक्शन देने का. I will not. Do you think that he or she will be a great doctor? Very focused career, doctor, nothing else. Obviously not. Computer people, the more they study computer and various technology associated with computer, their faith in God increases. So I'm trying to explain you. When you start the machine, what happens first? जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो पहले क्या होता है? यार आप सबने कभी ना कभी बूटिंग होता है. वेरी गुड. विंडोज का लोगो आता है. ऐसा नहीं है कि आप पहले ही मिनट पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोड कर दो या एक्सेल लोड कर दो या ऑटोकैड लोड कर दो या कोई भी सॉफ्टवेयर लोड कर दो, काम करना चालू कर दो. You are not, and it takes lot of time to load. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से लोड नहीं होता है तो कैन यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? नो, राइट? आई कैन नॉट. सो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से लोड होना चाहिए. वो नहीं हुआ तो मेरा काम नहीं होगा. सेम थिंग टिल 12th. अब 12 तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कंप्यूटर बूट हो रहा है. आप समझ लो, आप जब जन्म पैदा आप पढ़ना चालू करते हो, इट टेक्स 12 years टू लोड द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, वेयर यू लर्न वेरियस टेक्नोलॉजी, वेरियस सब्जेक्ट्स. एंड देन if you work with computer engineering, you become computer. If you become mechanical, doctor, chartered accountant, chartered, then you become a specialist. So same thing happens with the computer. पहले operating system load होता है, फिर आप word चालू करो, excel चालू करो, कोई tableau चालू करो या C programming या python, कुछ भी, anything you load, computer will work for that particular environment. So that is basically how it happens. So it is very important that आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर लोड हो. See the problem with the computer engineering and the problem with the other engineering. आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से I'm not disappointing, I'm trying to tell you that this is basically a problem
And if you overcome the problem, if you prepare yourself for 4 years or wherever you get the time, which is not taught as a part of your curriculum, then you have an excellent career. Believe me, wherever you go, people are ready to welcome you, provided the knowledge which I am telling you that you acquire in this 4 years, apart from whatever has been taught in the college. Trying to understand. So basically what happens? Once the operating system is loaded, 12th तक आपने पास कर लिया, अभी आपके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है. कोई लड़के को देख के आप बोल सकते हो कि ये डॉक्टर है? Can you tell him? Looking at the person, वो आराम से अपना चड्डी और टी शर्ट पहन के बैठा है और एक इंजीनियर है, एक मैकेनिकल है, एक कंप्यूटर है, एक डॉक्टर है, एक चार्टर अकाउंटेंट. कैन यू टेल हिम? नो. तो जो चारों लोग बैठे हैं उनमें फर्क क्या है? Why we call him as a doctor? Why we call him other fellow as a mechanical engineer? Why we call other fellow as a computer engineer? What is the difference? Okay. आपको मालूम है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? अपना बॉडी में भी एक हार्डवेयर है, देयर इज अ सॉफ्टवेयर. आदमी को दो प्रकार की मेमोरी होती है. एक इंटरनल है जो आपने याद रखा है, एक एक्सटर्नल है जो आप नोटबुक में या अपनी डायरी में लिखते हो. मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो डॉक्टर इज द वन whose internal memory is loaded with a knowledge of medical science. Computer engineer is the one whose memory is loaded with the knowledge of computer science. अगर 4 साल के बाद आपको कंप्यूटर का कुछ याद नहीं है, आपने जो पढ़ा वो सब भूल गए, and if your memory is not loaded with the knowledge of computer science, you are useless. फिर आपको कहीं पिज्जा शॉप में या मार्केटिंग में, मैंने बहुत सारे कंप्यूटर वाले देखे हैं, एट द एंड ऑफ द 4 ईयर वो बोलता है सर मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इतना एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे कहीं और जॉब दिला. दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस. इट इज वेरी डिस्गस्टिंग. आदमी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है, सेकंड सेमेस्टर में जाता है, then it is basically the responsibility of the individual कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा जो मेरे को लास्ट तक काम में आएगा. मैं उसकी बुक रख लूँ, नोटबुक रख लूँ, और सेकंड सेमेस्टर में जब भी मुझे टाइम मिले तब मैं फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा पढ़ लूँ. फिर सेकंड सेमेस्टर में आता हूँ, मैं सेकंड सेमेस्टर का थोड़ा पढ़ लूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का भी पढ़ूँ. लाइकवाइज व्हेन आई एम इन द 8th सेमेस्टर, तो 8वें सेमेस्टर में मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ता हूं तो मुझे एक दिन में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन हो जाएगा, एक दिन में सेकंड सेमेस्टर का, क्योंकि मैं एवरी डे आई एम डूइंग दिस. सो व्हेन यू आर इन द 8th सेमेस्टर, you know everything about the first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. So you are a perfect computer engineer, ready to accept any challenge from the industry. तो ये होना बहुत जरूरी है. आप फर्स्ट सेमेस्टर के निकले, सेकंड सेमेस्टर में आए, फर्स्ट सेमेस्टर का सब भूल गए, वो नहीं चलेगा. पूरे जमा करना जब वो तो खरीद जम रॉयल ऑप्टिक ताजनी सामने मुक्ति होती है. First of all, let me congratulate all the people who has chosen computer engineering as a discipline. You are an architect of future. You are an architect of ease of operations for various engineers or entire society as a whole.
And today is an architectural day, World Architect Day. The people who really design a building. Architect को बहुत पैसा मिलता है as compared to structure engineer. I don't know whether you know that the difference between architect and structure. Structure engineering is very difficult to study. उसमें बहुत फॉर्मूला आती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आदमी पक जाता है. एंड इट इज अ वेरी टफ लाइन. स्ट्रक्चर का डिजाइन करना सबके बस की बात नहीं होती है. ओनली फ्यू कैन डू इट एंड इट इज अ डिफिकल्ट ब्रांच. एंड स्टिल स्ट्रक्चर पीपल आर पेड वेरी लेस एज कंपेयर टू आर्किटेक्ट. व्हाई? क्यों? Can anybody tell me? Come on यार, कुछ भी तो बोलो. आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर में वैकेंसी कम होती है, ऐसा नहीं है. नहीं, मैं वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑनरेरियम. सपोज मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो मैं बिल्डिंग के लिए एक आर्किटेक्ट को रखता हूँ, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को रखता हूँ. आर्किटेक्ट को मैं अपनी पूरी बिल्डिंग की जो कॉस्ट होती है उसका 10 से 15% फीस पे करता हूँ, और स्ट्रक्चर को मुश्किल से 1% 2% फीस पे करता हूँ. पूरा जो स्ट्रक्चर डिजाइन करता है मेरे बिल्डिंग का, उसका 1 और 2% करता है. और the amount of effort structure engineer take is much higher as compared to architect. आर्किटेक्ट को कम टाइम लगता है डिजाइन करने को, स्ट्रक्चर को ज्यादा लगता है. फिर भी मैं आर्किटेक्ट को ज्यादा पैसा देता हूँ, स्ट्रक्चर को नहीं देता. What is the problem? What is the difference? Why? Smart work. Yes, it is a smart work. Very good. See, I'll tell you. एक लैंड मैंने खरीदा है, वहां मैं आर्किटेक्ट को खड़ा करता हूँ, एक स्ट्रक्चर वाले को खड़ा करता हूँ. तो आर्किटेक्ट वाला आंख बंद करता है ना, तो उसका पूरा बिल्डिंग दिखता है. स्ट्रक्चर वाला आंख बंद करता है, उसको कुछ दिखता नहीं है. वो आर्किटेक्ट का ड्राइंग बनेगा तभी उसके ऊपर वो काम करेगा. स्ट्रक्चर वाले को आर्किटेक्ट का ड्राइंग चाहिए, वो अकेला काम नहीं कर सकता है. सपोज एक लड़का है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज यू आर ड्राइविंग ए कार और आपको 5 फीट का दिखता है. लेट्स से आई विल गिव वन नेम. वी हैव अ व्रज. सो व्रज को 5 फीट दिखता है, यश को 50 फीट दिखता है, और तन्मय को 5 किलोमीटर दिखता है. तेज कौन चलाएगा गाड़ी? तन्मय, क्योंकि तन्मय को बहुत लंबे तक दिखता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. जो कंप्यूटर इंजीनियर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट डे अपना करियर तय कर लेता है, the one who decide that this is what I want to be. यस तन्मय, तेरी गाड़ी बहुत तेज चलेगी. तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप डिसाइड कर लो कि तुमको क्या करना है ना, कौन सी करियर बनाना है, कितना लंबा तक जाना है, आप अभी से सोच लेते हो. अभी होता क्या है मालूम है? सपोज मार्केट में एक जुआड़ आया था कि टीवी रिपेयर करने वाले हैं, उनको बहुत वैल्यू है. आदमी टीवी सीखने पे बैठता है, वो सीख के बाहर निकलता है, तब तक वो निकल जाता है. फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग. सपोज आज के दिन में कोई बोलता है मैं तुम्हारा स्कूटर रिपेयर कर सकता हूँ. डू यू थिंक दैट यू वैल्यू इट? वो एक मैकेनिक हो गया, ही इज नॉट इवन एन इंजीनियर.
सिमिलरली अगर कंप्यूटर में अगर आप कुछ सीखते हो तो उसकी वैल्यू आज है, बट फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी की वैल्यू होने वाली है वो आपके सिलेबस में नहीं होता है। अगर आप वो सीखते हो then you have a value. So this is very important. Good electronics has a good scope, nanotechnology has a good scope. कंप्यूटर का एक फायदा क्या है मालूम है? पब्लिक कंप्यूटर क्यों सिलेक्ट करती है? कंप्यूटर वाला अकाउंटिंग सीख ले और एक अकाउंटिंग का पैकेज बना लेता है। कंप्यूटर वाला एक पूरे बिल्डिंग के मशीनरी के कंप्यूटर फैक्ट्री का डिटेल सीख लेता है और उसकी सिस्टम डिजाइन कर लेता है। So this is basically what happens. Computer people can get into any field, कोई भी फील्ड में वो जा सकता है। उसको वो सिस्टम का, जैसे बोला ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं एक कविता भी लिख सकता हूँ, एक ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं कुछ लीगल डॉक्यूमेंट भी लिख सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग वंस आई हैव अ टूल अवेलेबल। ओनली थिंग इज दैट आई हैव टू गेट इनटू अ डिफरेंट डोमेन एंड लर्न दैट थिंग। अगर वो मैं सीख लिया तो ये मैं बना सकता हूँ। तो कंप्यूटर वाला ऐसा थोड़ी है कि खाली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही बना पाता है। ही कैन डेवलप अ मोबाइल ऐप, वो इंजीनियरिंग डिजाइन का भी सॉफ्टवेयर बना लेता है, वो कुंडली भी निकाल लेता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज बेसिकली व्हाई पीपल चूज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, because computer engineering has got the maximum scope among all the branches. कंप्यूटर में अगर आप ठीक से पढ़ते हो, उसकी लैंग्वेजेस, उसकी डिटेल्स, उसकी टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप कोई भी सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, if that is something, if you do, 1 minute. Sorry. So why computer? Because computer basically helps you to get into any branch. आपको पहले ही दिन डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप कोई इंजीनियरिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, आप कंप्यूटर में दो प्रकार की जॉब होती है। वन इज प्योर कंप्यूटर साइंस वेयर यू गो इनटू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकंड इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ computer. So you work with the shopping mall and you develop the application for that. You work into some factory and develop the application for factory. You work into the college and develop the education system. You work with augmented reality, you work with the virtual reality. Then another opportunity is basically you work with some software company who basically develop the tools. So you work in a company like Microsoft, Adobe, Autodesk. You work with the software company and you develop the applications. And the third career is you do something of your own. Startup bolte hain, and build your career. So you have to decide what you want to be, number one. Number two, you must spend your time in learning accounting as a subject, how entire factory works. फैक्ट्री में एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर रिसीव होता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन बनता है। लेट्स से आई वांट टू बाय अ कार, तो द एंटायर सिस्टम इज बेसिकली वर्किंग।
तब ऑनलाइन भी कुछ बनाते हो, तो you must know that how exactly the entire system works. Suppose I want to do something manually, am I able to do this? Artificial intelligence and machine learning, you will see that what are the scope and how exactly it works. I'll tell you. So, what is important? You should know your computer engineering subject from first semester to the 8th semester, and it should be there in your memory. तभी आप अच्छे कंप्यूटर, आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको कुछ याद ही नहीं है, आप बोलोगे हाँ मैंने पढ़ा है, पर अभी कुछ नहीं आता. It is there in the book. You are no good. सी कुछ लोगों को बहुत अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब मिलती है, कुछ लोगों को 5 पैसे की भी नौकरी नहीं मिलती. What is the difference? The difference is, एक बच्चा है वो फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर जो भी पढ़ा है उसको सब याद है, उसने ठीक से समझा है, ठीक से पचाया है. और एक है उसको कुछ मालूम ही नहीं है. He is basically working for the exams. He is working to pass the exams. He is not interested in subject. He doesn't want to gain depth into the subject. सिलेबस में है या नहीं है, वो सिलेबस ही खाली देखता है. कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेबस में है या नहीं है, वो सब्जेक्ट के ऊपर मुझे एक्सपर्टाइज डेवलप करनी है, तो वो he works and develop the interest and learn the subject well. So basically, when you are in this field, when you have chosen computer engineering as a subject, you must take interest. You should have an interest in learning the subjects, in learning the technology, acquiring the expertise over the technology, and not merely marks. This is very important. If you do this, बहुत बच्चों को क्या बोलते हैं माँ बाप, तू बस एक 12th की एग्जाम पास कर ले फिर हो गया तेरा, हाँ फिर मेहनत नहीं करेगा तो चलेगा. इट इज अ मिसनोमर. तुम्हें वो 4 साल भी उतनी ही मेहनत करनी है, शायद ज्यादा मेहनत करनी है, इफ यू रियली वांट टू मेक अ करियर. और ये 4 साल के बाद जब जॉब लगती है, तभी भी आदमी को शायद उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसकी जॉब टिकाए रखने के लिए. तो आपको लाइफ टाइम मेहनती बनना है. इफ यू आर हार्ड वर्किंग, देयर इज अ करियर. इफ यू थिंक दैट कि मैंने कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया, मेरी जिंदगी बाकी की सब ऑटोमेटिकली बराबर चलेगी, ऐसा कुछ है नहीं. डोंट गेट इनटू दिस wrong concept. You must work hard like you were working hard during your 12th, during your 11th. And if you are not worked, and because of your father's money or because of influence, you have got the admission in computer engineering, then better understand that this is the branch where you need to work hard continuously. Even if you don't complete your computer engineering, BE आपने complete नहीं किया है, but आप अगर कोई subject में, कोई language में, कोई technology में अगर आपकी expertise develop करते हो, there is a career, there is a value, and people will respect you. So it is not your degree, it is the knowledge, it is your expertise which will bring value to your life, which will bring value to your career. So spend time, be regular, be attentive, attend all the lectures, understand that each and every word uttered by the faculty is understood by you. If not, go back और उसकी जान खा लो फैकल्टी की. आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए. अगर नहीं समझ में आती है, then you will have a problem and you will have a bigger problem.
आप कितनी फीस पे करते हो सेमेस्टर में? Just approximately write the number. 54,000, right? Done. I got it. Now, in a semester, you have 4 months, right? 4 महीना होता है आपके पास. पर मंथ आपका 20 दिन का क्लास होता है. ऑन एन एवरेज, छुट्टी छोड़ दो, 20 दिन का क्लास होता है. और पर डे आपका 5 घंटा पढ़ाई होता है. तो मोटा मोटा आप 400 आवर्स कॉलेज में पढ़ते हो. एक सेमेस्टर में आप 400 घंटा पढ़ते हो. अगर मैं 54,000 फीस पे करता हूं और मैं 400 घंटा पढ़ता हूं, तो पर आवर आई पे अबाउट 135 रुपीज. मैं आपको बोलूं, आप क्लास बंक करते हो तो बोलूं कि यार एक 125 रुपया बाहर फेंक दे. विल यू डू दिस? आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं? When you are paying this 54,000 rupees per hour, आपका 135 रुपीज जाता है. आपने पढ़ाई की या नहीं की, लेक्चर ले लिया, अगर वो 135 रुपीज वर्थ नॉलेज मेरे मेमोरी में नहीं घुसा, मैं उतना कंप्यूटर इंजीनियर बढ़ा नहीं. एक कंप्यूटर इंजीनियर सपोज इतना है, तो एवरी डे यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग टू दिस लेवल. अगर मेरा वो जर्नी आगे नहीं जाता, so I have wasted that 135 rupees per hour. Do you understand this? So what I'm saying is that every second 135 रुपीज का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एवरी मिनट आप 2.25 रुपया का खर्च करते हो. द फीस दैट यू हैव पेड, एवरी मिनट you are spending 2 rupees 25 पैसे. अगर आपने उतना सीखा नहीं, आप घर से हर रोज 2 रुपया की नोट लेके आने का, अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना, वो 2 रुपया वेस्ट वहां डस्टबिन में डाल देने का. डू यू थिंक दैट यू विल डू दिस? कर सकते हो आप? प्लीज बी अटेंटिव. कॉलेज में देखो, आपके फैकल्टी भी सुनते होंगे, सो आई एम रियली सॉरी फॉर मेकिंग दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट. सो डोंट फील बैड. आपके यहाँ अच्छे फैकल्टी भी होंगे, बट आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द फैकल्टी, उनको क्या है, आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उनको तो तनख्वाह मिलती है. दे विल नॉट लूज एनीथिंग. अगर उसको महीने का 60,000 रुपया सैलरी है, तो एक दिन खत्म होता है, उसको तो 2,000 रुपया मिल ही जाता है. अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा तो आपका पैसा बर्बाद होता है 135. तो कॉलेज में बंक मत मारो, मास बंक मत करो. कोई बोलता है ना, तो उसको बोलो 135 रुपीज दे मेरे को. इफ यू आर टेलिंग मी टू बंक द क्लास, गिव मी 135 रुपीज. Learn, make use of every second, every minute, and if you don't do that, you will be the loser. अगर आप ऐसा करते हो कॉलेज में, every second, every minute, if that counts, and if you learn, believe me, you will be a good computer engineer. अगर वो ऐसा नहीं करते हो, you will not be a good computer engineer. तो आपको वो करना बहुत जरूरी है. Another important thing is that you must decide that where you want to make the career at the end of the third semester. Third semester के बाद
आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ करियर बनाना है, और कॉलेज के सिलेबस, कॉलेज के करिकुलम, see whatever is being specified in your curriculum, whatever is being taught in the college, that is fine. Computer language is very easy to understand if you study well. Computer language, unfortunately क्या होता है, I don't know about your faculty, there are colleges where faculties are not good, they don't teach well, and then people don't understand. Suppose I don't know English, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और आपको मैं बोलता हूं कि आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओ, आप क्या पढ़ाओगे? Tell me, what will be the sequence of operations to teach language? What will you teach? ABCD, correct? Then you'll ask me to from words, and then आप में से मदर टंग गुजराती कितने लोगों की है? काफी लोगों की है। यस, नो, लॉट ऑफ पीपल गुजराती, वेरी गुड। एक छोटा बच्चा गुजराती में लंबा लंबा सेंटेंस बोलना शुरू करता है, डू यू थिंक दैट उसको अल्फाबेट आता है गुजराती का? गुजराती का अल्फाबेट तो स्कूल में जाता है तभी पढ़ता है, और वो जब अल्फाबेट क ख ग पढ़ता है उससे पहले तो लंबा लंबा सेंटेंस बोलना चालू कर देता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज बेटर। यू हैव सीन मेनी पीपल in foreign country, they can speak English but they can't write, they are not good, they don't understand grammar, and still they speak English fluently. So the process of learning language is wrong. इंग्लिश में अल्फाबेट सिखाते हैं ना, वो गलत है। आदमी को छोटी छोटी स्टोरी बोलना शुरू कर देना चाहिए, उसको सीधा एप्लीकेशन। सो सिमिलरली कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़नी है तो आदमी को है ना सीधा कुछ ग्रामर वामर सिखाने का नहीं, उसको सीधा बोल देने का तो ये प्रोग्राम लिख, एक छोटा सा बायोडाटा बना, और उसको छोड़ देने का। ही विल स्ट्रगल। जैसे मेरे यहाँ सी पढ़ने आते हैं तो मैं उनको छोड़ देता हूँ तो तुम ये लिखो, वो सोचता है सर ने तो पढ़ाया नहीं यार, लिखने के लिए बोल रहा है। He struggle, he make mistakes, and then I tell him the correct way and he learns. So language पढ़ने के लिए ये जो ग्रामर पढ़ाते हैं ना, आदमी पक जाता है, वो ABCD पढ़ता है, स्पेलिंग पढ़ता है बच्चा, तो सोचता है ये सब करने की जरूरत क्या है यार। Then understand the value of it. So I agree that you should be two ways. You must learn the grammar basics and be in the atmosphere of language. Application से ही आदमी सीखता है। क्लासरूम में मैं 1000 इंस्ट्रक्शन दूं ना, पीपल विल नॉट डू इट। तो आप है ना कभी भी आपका प्रैक्टिकल मत मिस करना। कुछ लोग है ना कंप्यूटर में एडमिशन लेते हैं ना तो पापा और मम्मी की कान पट्टी पकड़ते हैं, मेरे को लैपटॉप चाहिए, उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता, which is a wrong. You should use the computer lab of your college maximum. You know the reason? वहां बैठे हो ना तो वहां आप लैब का ही काम करोगे, दूसरा काम नहीं करोगे। मैं
भगवान श्रीनाथ जी में मानता हूँ, तो मैं श्रीनाथ जी का फोटो यहाँ लगा के दर्शन कर सकता हूँ, फिर भी मैं नाथ द्वारा जाता हूँ। आदमी कॉलेज में पढ़ने जाता है, घर में बैठता है तो इतना एटमोस्फियर नहीं बनता है, तो मैं वहां नाथ द्वारा जाता हूँ तो खाली भगवान का ही नाम देता हूँ और कुछ नहीं। श्रीनाथ जी का फोटो मेरे पास 24 घंटा सामने रहता है, मैं उसका ध्यान नहीं कर सकता। तो आप कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल करने जाते हो, यू हैव समवन टू हेल्प यू, देयर इज अ एटमोस्फियर, आप वही काम करोगे, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। आप लैपटॉप पे बैठे हो, सडनली एक लिंक आती है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो खुलता है और आप लग जाते हो, और वहां से कहाँ घूम गए, आपके 3-4 घंटे निकल गए। सो आई सजेस्ट that if you want to be a good computer engineer, अगर आपको अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, डोंट बाय लैपटॉप। आप कॉलेज में मैक्सिमम टाइम निकालो, रेगुलरली वहां लैब करो। कॉलेज के प्रोफेसर्स आपको 1 मिनट, आप बोलो। हाँ, तो मैं कॉल करूँ, हमारे लेक्चर चालू। सॉरी। सो आई मस्ट is learning computer language is enough to make a good career? Yes. अगर आप कोई भी एप्लीकेशंस, कुछ भी कंप्यूटर को कन्वे करना चाहते हो, कुछ भी एप्लीकेशंस, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, आपकी कुछ सोच बनती है, आपको लगता है कि ये काम करने के लिए आदमी बहुत टाइम निकालता है, पहले ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है, ये करता है, एंड आई वांट टू ऑटोमाइज दैट ऑपरेशन, तो मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे लैंग्वेज आना जरूरी है। तो यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर वन लैंग्वेज, एंड मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज इज सी प्रोग्रामिंग। आप सी के अंदर एकदम, आप सोचोगे कि ये आईआईटी या धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट या यूएस की बहुत सारी कॉलेजेस, वहां अगर आप जाते हो तो सी प्रोग्रामिंग या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बड़े बड़े बहुत ही डिफिकल्ट पजल्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को देते हैं, एंड स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। तो अगर आप एक लैंग्वेज में मास्टर हो तो बाकी सब लैंग्वेज आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। C is the mother of all the language and you must develop the expertise. अगर कोई भी आदमी आपको कोई भी पजल, कोई भी प्रॉब्लम देता है, and if you are able to solve in that, you have done a great job. Any question you have? I have got another half an hour or maybe 30-35 minutes. So if you have any questions, let me know. You can ask questions over here. I'll tell you that what are the areas where you should pursue the additional course. And if you do this, see, I'll tell you, I'm not discounting the syllabus of GTU. GTU has got a very diluted course. GTU का जो कोर्स है ना, ये बहुत ही shallow है, and that is where the problem is. GTU ने क्या सोचा, आप तो अच्छे सिटी में हो, गांधीनगर में, बट कहीं इंटीरियर में कोई कॉलेज खोल दिया है तो वहां भी प्रोफेसर मिलना चाहिए। मैं एकदम टफ टॉपिक सिलेबस में रख दूंगा तो इतने सारे प्रोफेसर, इतने सारे कॉलेजेस में कहां से मिलेंगे? तो इजी चीज रखा हुआ है। तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग जब पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग यही है, यही नहीं है। तो आप है ना, सी के एडवांस कोर्स करिए, अच्छे से पढ़िए,
प्रोफेसर से बोलिए कि मेरे को और कोई दुनिया भर की बुक खरीदिए और बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए और कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, क्यों करती है, व्हाई यू रिक्वायर टू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट रखिए। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, मैं कंप्यूटर में बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ,